Good morning, students. Today we start the lecture number 13 on the electrochemistry, that is the factor affecting of the electrolysis and electrolytic product. Factor, that is the most important part for the asking the questions of the 1 marks and 2 marks and the 3 marks, the factor affecting of electrolysis or electrolytic product. First factor affecting is the nature of electrolytes. The nature of electrolytes based on NaCl, nature of electrolytes, just like the nature of the electrolyte. Nature of the electrolytes means just like NaCl, MgBr2 or ElCl3. Or the both of the factor affectings are based on the nature of electrolytes. The nature of electrolyte is the monovalent, divalent and trivalents. So which kind of the electrolyte is this? Monovalent, divalent or trivalents. So these are the most important factor affecting for the nature of electrolytes. Then second is medium of electrolytes. Medium of the electrolytes are also based on the molten and aqueous. Already discussed the molten and aqueous. Molten and aqueous, they are also affect the mediumity of the electrolyte. So what is the electrolyte? Dissociation of their respective ions. Third is the concentration of the electrolytes. What is mean by the concentration of the electrolytes? Concentration of the electrolytes means they are the either concentrated, the amount of the concentration is the more, or either diluted. So basically there are the molten electrolytes, aqueous electrolytes, concentrated electrolytes, dilute electrolytes. Based on the three factors, they are the questions for electrolysis. And then fourth factor is nature of electrodes. Nature of electrode depending inert electrode. The inert electrode just like the either PT, maximum is the PT, or either gold in another gold, or but in the case of active just like Hg or either silver used for active metals, for the active metals. So electrode for the electrode is the inert or active. For the inert cases, there is no take part in the reactions formations, only providing surface, but they are changing their activities in a product of electrolysis. Next, second part of this is the predict the product. That is the most important thing for the question. Predict the product. चलिए आज के लेक्चर के जरा वापस रिवाइज करें. लेक्चर नंबर 13 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड करेंगे बेसिकली दो चीजों पर. चार चीजों में डिवाइड कर रखा है, बेसिकली दो चीजों पर. कौन सी दो चीजें? एक है इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा है इलेक्ट्रोड्स. तो इलेक्ट्रोड कैसा होना चाहिए? इनर्ट होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए. इनर्ट और एक्टिव. और इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट कैसा भी हो सकता है, जैसे मोल्टन हो सकता है, एक्वस हो सकता है, कंसंट्रेटेड हो सकता है, डाइल्यूट हो सकता है. इन्हीं चीजों पर आपके पास क्वेश्चन आगे आने वाले हैं. अब 2 दिन से हम लोग क्वेश्चन करें प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट. केस नंबर फर्स्ट ऑन द प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट. फिर से देखिए इन क्वेश्चनों को जो कि बोर्ड में मैक्सिमम पूछे जाते हैं. एंट्रेंस, होम, बोर्ड सभी जगह में मिलेंगे आपको. केस नंबर फर्स्ट. क्या केस नंबर फर्स्ट है? मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स है. केस नंबर फर्स्ट में अगर हमने इलेक्ट्रोड को ले रखा है, इलेक्ट्रोलाइट को ले रखा है, इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए? मोल्टन. ये ऊपर का केस है ना आपको कि भाई मोल्टन हो और एक्वस हो. तो अगर ये मोल्टन स्टेट में है, अगर ये मोल्टन स्टेट में देन एग्जांपल देखिए. NaCl है, NaCl मोल्टन ले रखा है और PT रॉड क्या है मेरे पास? PT इलेक्ट्रोड ले रखा है. देखिए ये रहा. तो ये कौन सा है? इनर्ट. तो इलेक्ट्रोड इज इनर्ट और इलेक्ट्रोलाइट इज मोल्टन. तो इस सिचुएशंस में मेरे पास इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इस सिचुएशन में NaCl है, Na प्लस में और Cl माइनस में. Na कहाँ गया आपके पास? कैथोड. ये आपको मैंने पहले भी बता दिया है. और Cl कहाँ जाएगा? माइनस. केस क्या है? फिर से याद रहे, केस क्या है? मोल्टन केस में. और इलेक्ट्रोड कैसा है? इनर्ट. PT इलेक्ट्रोड है. इनर्ट. तो ये है प्रोडक्ट. अब इसके बेस पर आपके पास उसी तरह से ये जो आपको मिल गया, कैथोड में क्या मिला? सोडियम मिला. किस फॉर्म में मिला? सॉलिड में. और एनोड में क्या मिला? क्लोरीन. और ये किस फॉर्म में मिलेगी? गैस. ये रिलीज होती हुई आपको दिखाई दी जाएगी. तो बाकी सोल्यूशन किस भी चीज का बचा? सोल्यूशन में आपके पास क्या बचा? एक्वस सोल्यूशन था, मोल्टन था. तो एक्वस सोल्यूशन और मोल्टन में कुछ नहीं बचा. NaCl पूरी की पूरी से निकल गया. फॉर्म ऑफ द सोडियम एट द सॉलिड स्टेट एंड और क्लोरीन गैस एट द गैस स्टेट. तो सोल्यूशन के अंदर यानी कि जो कंपोनेंट था वो धीरे धीरे आपके पास खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा. सेकंड, उसी तरह से MgCl2
उसी तरह से आप MgCl2 भी बात कर सकते हो। MgCl2 अगर मॉडर्न है, मॉल्टन स्टेट में, तो आपके पास क्या है। और दूसरा ElCl3 भी अगर आप मॉल्टन स्टेट में तो किस तरह से है, जबकि रॉड आपने क्या ले रखी है, PT। तो केस नंबर फर्स्ट क्या था, केस नंबर फर्स्ट था कि आपने मॉल्टन ले रखा है और रॉड ले रखी है आपने इनर्ट, तो हमारे पास प्रोडक्ट आपको कैसे लिखना है। तो याद रहे इनका कोई रोल नहीं है, या जस्ट प्लेइंग द सरफेस, जस्ट प्रोवाइडिंग द सरफेस फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट और इलेक्ट्रोलाइसिस, nothing else. Then case number second. Look at the case number second. That is the case number second is the aqueous. So what is the aqueous? ये aqueous. तो aqueous के केस में, केस वही है aqueous के केस में, और PT रॉड मेरे पास क्या है, PT है। PT का मतलब क्या हुआ, इनर्ट रॉड। तो अब मैंने NaCl को aqueous फॉर्म में ले रखा है। तो फिर से वही, अब ये चीज पहले वाले केस से कैसे डिफरेंट है, ये पहले वाले केस से कैसे डिफरेंट है। तो कर दे NaCl में Na+ में और Cl- में बना, सबको पता है। और वाटर एक्वस मीडियम, एक्वस वाटर H+ में और OH में। अब ये दोनों को दोनों आप देखिए यहाँ पर कंपटीशन होने स्टार्ट हो गया इन दोनों में। इन दोनों के अंदर ये कैथोड में जा रहे हैं और ये दोनों को दोनों एनोड में जा रहे हैं। तो इन दोनों में से कौन कैथोड में पहले जाएगा, इन दोनों में से कौन एनोड में बाद में जाएगा, ये मैंने आपको कल भी डिस्कस करके बताया था। तो इन दोनों में से कौन कैथोड कौन एनोड, यह है सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो अगर इन दोनों केस में आता तो कौन इंपॉर्टेंट हुआ, ये इंपॉर्टेंट हुआ। केस नंबर सेकंड, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो केस ऑफ NaCl के अंदर, तो NaCl के अंदर Na+ में Cl- में H2 H+ में OH- में, इन दोनों के अंदर आपको क्या देखना है, कल भी मैंने आपको बताता, इन दोनों के अंदर आपको देखना है SRP की वैल्यू। SRP की वैल्यू इन दोनों में से जिसकी होगी ज्यादा वो डिस्चार्ज होगा फर्स्ट, कहाँ, कैथोड में। और यहाँ पर देखनी थी SRP की वैल्यू ज्यादा, और इस केस में देखनी है SRP की वैल्यू कम। तो इन दोनों के केस में और इन दोनों के केस में लुकट है। अब ये था जैसे एग्जांपल के बेस पे देखिए, लिथियम, सोडियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर और सिल्वर, ये कैसे बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं, ये इस तरह से बढ़ रहे हैं इस तरह से, हाँ बढ़ रहे हैं। तो और ये कहाँ है, इस तरह से बढ़ रहे हैं। तो अब इन तीनों में देखिए क्या SRP की वैल्यू इस तरह से बढ़ रही है। इन दोनों में से कौन डिस्चार्ज फर्स्ट होगा, हाइड्रोजन फर्स्ट होगा। क्यों, ये सीरीज में 0 की तरफ चल रहा है और ये नेगेटिव में चल रहे हैं, तो ये SRP की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये पहले सबसे पहले ज्यादा डिस्चार्ज होगा इन दोनों के अंदर। तो ये दोनों को दोनों में से कौन डिस्चार्ज होगा, हाइड्रोजन। क्यों ही हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा, क्योंकि SRP की वैल्यू ज्यादा है। Minded the one thing, the SRP value is a higher discharge first at cathode. It's the 100% then and right. Next, second thing, the second option is the Cl or minus. They are the anion. For the anionic discharging, we required SRP value. The SRP value is lower, discharging first at anode. SRP value lower. तो अब सेकंड एग्जांपल, Cl- OH- NH3 NO3- और SO4- F-, who is the discharge first, Cl-. Why? SRP value is rest, where anode. तो अब दोनों को दोनों इक्वेशन लिख लीजिए। अब इक्वेशन में आपके पास ये आपने पहले भी लिखी थी इक्वेशन, Cl2Cl- give Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में। देन एनोड, फॉर द एनोडिक केस H2, फॉर द एनोडिक केस H2, 2H+ में 2 इलेक्ट्रॉन और H2। तो एनोड में कौन है, एनोड में है Cl2 गैस निकल गई, और कैथोड में क्या है, कैथोड में आपके पास H2 है। अब यहां से कुछ और जनरल क्वेश्चन बना करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात भी होती है। क्या नोट करने वाली बातें हैं, नोट करने वाली बात जरा बच्चों जरा देखिए। अगर एक्वस केस आया है, एक्वस केस, अगर ये एक्वस केस आया है, एक्वस केस के अंदर क्या होता है, एक्वस केस के अंदर हो जाती है हमारी ये जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है, ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन घटेंगे या बढ़ेंगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इसमें घटी है या बढ़ी है। अगर एक्वस के केस में है तो आयंस बढ़ जाते हैं, आयंस बढ़ जाते हैं, आयंस बढ़ जाते हैं, आयन बढ़ गए। अब जरा आयंस के बढ़ने से इसमें देखिए 2H+ था और ये कन्वर्ट हो गया आपके पास H2 में, तो हाइड्रोजन आयन कम हुए या ज्यादा हुए, हाइड्रोजन आयन कम हुए ज्यादा हुए, हाइड्रोजन आयन कम हुए और ये कंबाइंड हो गया। तो इस सोल्यूशन की यानी कि इस बर्तन के अंदर की pH क्या होगी जरा बताइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, कैथोड में क्या निकला, हाइड्रोजन गैस। एनोड में क्या निकला, Cl2। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, हाइड्रोजन आयन कम हुए ज्यादा हुए, आयन बढ़े या घटे, तो आयन क्या हुए, बढ़े, हाइड्रोजन आयन क्या हुए, घटे। pH कैसा हुआ, अब ढूंढिए इसका pH आपके पास क्या हुआ, कम हुआ या ज्यादा हुआ। दूसरा था इसके अंदर, तीसरा बात हो गया। तो इसमें अगर मैं नंबर डालूं तो पहला आयन घटे बढ़े, दूसरा हाइड्रोजन आयन कम हुए ज्यादा हुए, कम हुए, pH इसका घटा है बढ़ा, तीसरा पार्ट हो गया। चौथा देखिए
चौथा मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि NaCl की पोजीशन क्या थी। NaCl आपने ले रखा था, अब NaCl की पोजीशन आपके पास क्या हुई। NaCl के केस के अंदर आपने क्या बोला था, NaCl का आपके पास क्या हुआ, एक तो यहाँ से जो अब NaCl जो आपने देखा था NaCl में, तो यहाँ से क्या निकला, ये डिस्चार्ज हो गया पहले, और दूसरे वाले केस में क्या हुआ, डिस्चार्ज ये हुआ। तो NaCl पहले के मुकाबले घटा या बढ़ा, NaCl का पहले का मुकाबले घटा या बढ़ा, NaCl कैसा रहा, तो ये देखिएगा। तो अमाउंट ऑफ NaCl क्या हुआ, कम हुई या ज़्यादा हुई, ये बताइए। और दूसरा पांचवा देखिए, पांचवा क्वेश्चन इसके अंदर क्या बना, पांचवा क्वेश्चन इसमें बना जब यहाँ से H निकल गया और यहाँ से Cl निकल गया तो सोल्यूशन कैसा है, OH बचा। तो NaOH की क्वांटिटी कैसी है, NaOH क्या है, NaOH कैसे बना और NaOH की कंसंट्रेशन क्या मिलेगी, ये है इसके जनरल क्वेश्चन। तो जरा फिर से देखिए, 3 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन इसके बन गए। पहला, कैथोड में क्या था, कैथोड में आपके पास क्या था, कैथोड में आपके पास क्या था, कैथोड में आपके पास था H2। एनोड में आपके पास क्या था, एनोड में आपके पास था क्लोरीन गैस, ठीक है। तीसरा, उसके बाद आयन, इसमें आयन बढ़े या घटे, आयन बढ़े, हाइड्रोजन आयन का क्या हुआ, कम या ज्यादा, हाइड्रोजन आयन हुआ कम, ये इसका क्या हुआ। दूसरा, जो NaCl की थी, NaCl की कंसंट्रेशन कम हुई या ज्यादा हुई। उसी तरह से NaOH जो आपका बचा, अब NaOH देखिए ये खत्म हो गया और यहाँ से ये खत्म हो गया, सोल्यूशन किस चीज का बचा है, NaOH का। तो NaOH का सोल्यूशन बता, तो NaOH की कंसंट्रेशन क्या होगी, क्या कम होगी या ज्यादा होगी। या जैसे आपने अगर मैं इसको बोलूँ कि अगर आपने NaCl के 100 मोल यहाँ पे ले रखे थे, 100 मोल यहाँ पर ले रखे थे, तो क्या NaOH के भी यहाँ पे 100 मोल बनने चाहिए। हाउ मच मोल ऑफ द NaCl इज फॉर्म्ड, दिस द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे बच्चों, जरा इसे ध्यान से देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए क्या क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। और जिन बच्चों ने इस चीज को अच्छी तरह से तैयार कर लिया, बोर्ड होम में और एंट्रेंस एग्जाम में से ज्यादा वो नहीं पूछता। तो एक्वस का केस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स फॉर एक्सप्लेनेशन द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। अब बात है क्या इसके अलावा भी कोई हमारे पास केस बनते हैं, तो ये हमेशा याद रहे कि क्या हुआ इस केसों में अंदर। अब इसके अलावा बनता है क्या और भी हमारे पास इस तरह के कोई केस बन सकते हैं, क्या हम और के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं, क्या हम और किसी के ऊपर भी इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस है। हाँ, ये भी बोला जा सकता है एसिडिटी और बेसिक वाटर। अब एसिड और बेसिक में भी हम पीएच के बेस पे बोल सकते हैं। भैया अगर आपके पे पीएच इसमें ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा देगा तो आप बोलोगे बेसिक है, और पीएच इसमें कम होगा तो आपको बोलोगे एसिडिक है। तो एसिड और बेस के बेस पे भी यहाँ पे बोला जा सकता है कि इसकी पीएच की कंडीशन के बेस में क्या हुआ। इसके अलावा भी आपके पास कुछ कंडीशन और बना करते हैं जो को बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। लेट स्टडी द डिस्कस द ईच एंड एवरीथिंग। आपको इसे होमवर्क के बेस पे उतारना है। केस हमने एक ही ले रखा, कौन सा केस ले रखा है, Na और Cl के केस में। तो NaCl के केस में 2 केस हो गए मेरे पास, एक्वस और दूसरा कौन सा था, मोल्टन। लेट डिस्कस द अनदर केस, जरा देखिए। अब इसमें क्या है आपके पास, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है, एक्वस NaCl है, लेकिन आपके पास क्या है कंडीशन, डाइल्यूट है और पीटी रॉड ले रखी है। लुक एट द पीटी रॉड। दूसरा केस नंबर 4, गुड, क्या है, एक्वस है NaCl और ब्रैकेट में क्या, कंसंट्रेटेड रॉड कौन सी आपके पास, पीटी। ये देखिए, तो डाइल्यूट और पीटी, और दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए होमवर्क हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द होमवर्क रिलेटेड टू द होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है। तो होमवर्क के क्वेश्चन आपके बढ़ गए। केस नंबर 4 देखिए, तो NaCl था, कंसंट्रेटेड था, पीटी रॉड आपने ले रखी है। नेक्स्ट केस नंबर 5। केस नंबर 5 में क्या है, एक्वस ले रखा आपने, एक्वस ले रखा है NaCl, लेकिन एक्वस NaCl तो ले रखा है और कंसंट्रेटेड ले रखा आपने, लेकिन रॉड किस चीज की है, Hg एज ए कैथोड ले आपको ले रखा है। ये आपको दे दिया, Hg एज ए कैथोड आपको दे रखा है। तो हमारे पास प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, प्रिडिक्ट करिए प्रोडक्ट का हमारे पास क्या होगा। चौथा केस देखिए, एक्वस जो है NaCl, लेकिन NaCl तो ले रखा आपने, लोगों कोई भी कंडीशन हो सकती है, डाइल्यूट हो सकता है, कंसंट्रेटेड होता है, इनमें से कोई भी कंडीशन, डाइल्यूट हो सकता है, कंसंट्रेटेड हो सकता है, कोई अदर कंडीशन इसके अंदर लागू हो सकती है। लेकिन रॉड कैसी है, रॉड आपके पास है, रॉड आपके पास Hg की है। और Hg की रॉड के ऊपर मैंने आपको बताया था, Hg की रॉड के ऊपर मैंने आपको बताया था कि जैसे ये मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि भाई ये Hg हो गई, Ag हो गई, आपके पास एक्टिव मेटल की तरह काम करेंगे। इनर्ट में Pt हो गई या A हो गई, तो ये अब क्या हुआ, ये हो गया एक्टिव मेटल की तरह। तो यहाँ पे जो केस था, यहाँ पे जो केस आपने लिया है, ये केस आपके पास एक तरह का एक्टिव मेटल है। तो ये केस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसको जरा स्टडी करिए होमवर्क के बेस पे और बताइए कि किन किन बच्चों ने इसे सॉल्व कर लिया, किन किन बच्चों ने इसे क्लास कॉपी में कर रखा है। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर लॉज, और देयर इज द फ्राइडे फर्स्ट लॉ एंड फ्राइडे सेकंड लॉ, फ्राइडे फर्स्ट लॉ एंड द फ्राइडे सेकंड लॉ स्टार्टिंग नाउ।
तो उससे पहले कि इन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ की हम बात करें, ये चैप्टर लगभग आपके पास मिड से ऊपर जा चुका है। सारे के सारे बच्चे इसे क्लास कॉपी में करें, अच्छी तरह से करें, ढंग से करें जरा, और प्रेजेंट लिखाएं, और साथ में ये भी बताएं कि आपने ये चैप्टर को कितना समझ में आया। कॉमेंट्स में जाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल, जिन बच्चों को नहीं पता उनके पास भी चाहिए। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट, इन वीडियोज को अपनी कंसिडरेशन, अपनी प्रेजेंस में देखिए, ताकि सब बच्चे इसके ऊपर एडवांटेज में ले सकें। तो होप सो टुडेज लेक्चर यू definitely help out your information regarding the electrochemistry, the factor affecting, they are the factor affecting and question of this case number first, case number second and case number third, fourth, fifth and sixth, all are the homework. Hope so you like this video and subscribe it, and thank you for the watching, and have a great day and great night, and double namaste to all of you.